This is third video series on the topic of breast. Next question is choose false from the following. Option A, BRCA1, BRCA2 is tumor suppressor gene. Option B, BRCA1 is located on the long arm of chromosome 17 and BRCA2 is located on chromosome 13. C, BRCA2 mutation is having more risk than BRCA1. D, BRCA1 mutation having more risk than BRCA2. Answer is C, BRCA2 mutation is having more risk than BRCA1. BRCA1 and BRCA2 genes are tumor suppressor gene. Another example is P53 gene is also a tumor suppressor gene. Rest other genes which causes cancer are proto-oncogenes. BRCA1 mutation is having more than BRCA2 mutation. It is located on long arm of chromosome 17, whereas BRCA2 is located on long arm of chromosome 13. BRCA1 म्यूटेशन मोर कॉमनली शोज ER नेगेटिव स्टेटस, जिसमें कि पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलती है. हाई ग्रेड होता है, एन्यूप्लॉइडी होती है. BRCA2 म्यूटेशन में ER पॉजिटिव स्टेटस होता है. BRCA1 इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क इन मेल्स. बोथ आर एसोसिएटेड विद हाई रिस्क फॉर ओवेरियन कैंसर. Next question. Select the false statement. A. Lee-Froman syndrome is autosomal dominant condition with breast cancer inheritance along with sarcoma, leukemia, brain tumors, adrenocortical tumors. B. Cowden syndrome. It is an autosomal dominant condition with cutaneous facial lesions, bilateral breast lesions, gastrointestinal polyps, brain, thyroid tumors. C. Attaining early menarche and late menopause have low risk of breast malignancy. D. CA breast is often associated with ataxia telangiectasia. Answer is C. Attaining early menarche and late menopause have low risk of breast malignancy. ये एक टीचिंग MCQ है. इसका पर्पस आपको ली-फ्रोमैन सिंड्रोम एंड काउडेन सिंड्रोम की इन्फॉर्मेशन देना था. ली-फ्रोमैन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है. उसमें ब्रेस्ट कैंसर इनहेरिटेंस 90% देखा जाता है अलॉन्ग विथ सार्कोमा, ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर्स एंड एड्रीनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स. इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक भी होता है, इसको SBLA बोलते हैं. S फॉर सार्कोमा, B फॉर ब्रेन ट्यूमर्स, L फॉर ल्यूकेमिया, A फॉर एड्रीनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स. नेक्स्ट इज काउडन सिंड्रोम. इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन. इसमें कुटेनियस फेशियल लीजन्स देखे जाते हैं, बायलेटरल ब्रेस्ट लीजन्स 50% कंडीशंस में मिलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलिप्स मिलते हैं, ब्रेन और थायराइड ट्यूमर्स भी हो सकता है. अटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया की कंडीशन में भी CA ब्रेस्ट मिल सकता है. अदर रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के वो हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन काउंटरलिप्टल ब्रेस्ट, BRCA1, BRCA2 gene mutation, obesity, alcohol intake, nulliparity, early menarche and late menopause. Next question. Which of the following is false about Paget's disease? A. Usually unilateral. B. Itching absent. C. Vesicles absent. D. Nipple usually intact. Answer is D. Nipple usually intact. Now I will tell you about Paget's disease and eczema. Eczema जो है वो फंगल इन्फेक्शन है जिसमें कि जो यूजली बायलेटरल होता है. जो लीजन्स होता है वो उसके एजेस जो होते हैं वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं. इचिंग प्रेजेंट होती है. मोस्टली ये लैक्टेशन के टाइम पे देखा जाता है. उसमें वेजाइकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. निप्पल इंटैक्ट होता है और कोई लंप नहीं देखा जाता. और जो पेजेट्स डिजीज़ होता है वो एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जो कि यूनिलेटरल होता है. इसमें एजेस जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं. इचिंग एब्सेंट होती है. ये जनरली मेनोपोजल वुमेंस में देखा जाता है. इसमें वेजाइकल्स एब्सेंट होते हैं. निप्पल जो यूजली डिस्ट्रॉयड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर cutaneous manifestations of carcinoma of breast? A. POD orange is due to obstruction of dermal lymphatics. B. Dimpling of skin is due to infiltration of ligament of Cooper. C. Retraction of nipple is due to infiltration of ligament of Cooper. D. Retraction of nipple is due to infiltration of lactiferous duct. Answer is C. Retraction of nipple is due to infiltration of ligament of Cooper. इस MCQ में हम क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट को समझेंगे. प्यूरी ऑरेंज जो कंडीशन है इसमें जो ब्रेस्ट है वो रेड हॉट टेंडर हो जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डर्मल लिम्फेटिक्स. ये एक इन्फेक्शन की कंडीशन है.
नेक्स्ट जो डिम्पलिंग ऑफ स्किन है वो लिगामेंट ऑफ कूपर जो लंप है या जो मास है उसकी ग्रोथ के कारण लिगामेंट ऑफ कूपर्स में जब वो इन्फिल्ट्रेट करता है तो स्किन में डिम्पलिंग देखी जाती है। रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल जो होता है वो लेक्टिफरस डक्ट्स के इन्फिल्ट्रेशन के कारण होता है। समटाइम्स हमको अल्सरेशन भी देखने को मिलता है, स्किन में डिस्चार्ज देखने को मिलता है निप्पल एरुलर रीजन से, स्किन अल्सरेशन देखने को मिलता है। फंगेशन का मतलब है कि एक फंगेटिंग ग्रोथ हो जाती है, एक मास होता है जो कि पूरे स्किन को कवर कर लेता है। कैंसर एंड क्यूरेज जो कंडीशन है उसमें जो चेस्ट वॉल के ऊपर जो स्किन है उसमें एक नोडल फॉर्मेशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अफेक्ट ऑफ लिम्फेटिक ब्लॉकेज इन सीए ब्रेस्ट? ए प्यूदी ऑरेंज, बी ब्राउनी एडिमा ऑफ आर्म, सी कैंसर एंड क्यूरेज, डी डिम्पलिंग ऑफ स्किन। आंसर इज डी डिम्पलिंग ऑफ स्किन। जब सीए ब्रेस्ट की कंडीशन में ग्रोथ होती है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाता है, लिम्फेटिक्स का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, तो जो कंडीशंस हमको मिलती हैं तो हमको पीओडी ऑरेंज की कंडीशन मिलती है। समटाइम्स जो आर्म होता है उसमें एडीमा भी देखा जाता है, वहाँ पे इंड्यूरेशन पेनफुल नॉन पिटिंग जस्ट लाइक जैसे कि जो फाइलेरियासिस हो जाता है लेग में, लोअर लेग में, उसी तरीके की कंडीशन देखी जाती है। ऐसी ही एक एलिफेंटियासिस चेरार्जेंस की कंडीशन है जो आफ्टर ऑपरेशन लाइक रेडिकल मैस्टेक्टोमी या रेडियोथेरेपी के बाद देखी जाती है। समटाइम्स लॉन्ग टर्म में इसमें एक मेलिग्नेंसी भी डेवलप हो जाती है जिसको लिम्फेंजियोसार्कोमा बोलते हैं या फिर स्टुअर्ट ट्रेविस सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये सब जो कंडीशंस है वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सेकेंडरीज इन सीए ब्रेस्ट? ए लिवर, बी लंग, सी बोन, डी ब्रेन। आंसर इज सी बोन। मेनली इसमें 3 तरीके के स्प्रेड होते हैं, हेमेटोजीनस स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड और ट्रांस डायरेक्ट स्प्रेड। तो जो हेमेटोजीनस स्प्रेड होता है वो मोस्ट कॉमन साइट जो होती है उसकी बोन होती है। इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं वो लंबर वर्टिब्री होती है, फीमर होती है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स होता है, थोरेसिक वर्टिब्री होती है, रिब्स होता है, स्कल होता है। ये मेनली ऑस्टियोलिटिक लीजन्स होते हैं। जो सेकेंडरीज होते हैं बोन स्प्रेड के वो 2 तरीके के होते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोलिटिक। इसमें जो कॉमनली पाए जाते हैं वो ऑस्टियोलिटिक लीजन्स होते हैं। अदर साइड्स जो होती हैं स्प्रेड की वो होती हैं लंग्स, लिवर, सॉफ्ट टिश्यूज, ब्रेन, एड्रिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर? ए डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, बी लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, सी बोथ, डी नन। आंसर इज बी लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। पहले हम डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू और लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू इन टर्म्स को समझेंगे। लोबुलर जो ब्रेस्ट की एनाटमी होती है उसमें ब्रेस्ट पेरेन्काइमा होता है और स्ट्रोमल टिश्यू होता है। जो पेरेन्काइमल टिश्यू होता है वो उसमें डक्ट्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स ही कन्वर्ज होकर के निप्पल एरियोला पे डक्ट्स बनाते हैं। लीजन है जो जिसकी ग्रोथ या चेंजेस हैं जो हिस्टोलॉजिकल लेवल पे, जो अगर लोब्यूल्स में डेवलप हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। अगर वो चेंजेस डक्ट लेवल पे आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। तो ये दोनों डिफरेंट लीजन्स हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन। तो जो लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू होता है, अब मैं एक्सप्लेनेशन को रीड करता हूँ। इट ओरिजिनेट्स इन द टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट ओनली फॉर ऑफ फीमेल ब्रेस्ट शोइंग इन डिस्टेंशन एंड डिस्टॉर्शन। इट्स 12 टाइम्स मोर कॉमन इन वाइट फीमेल्स। Predominantly it is present in perimenopausal age group. High chances to predispose to invasive cancer. 35% of lobular carcinoma in situ may develop invasive lobular carcinoma either in the same or contralateral breast. मतलब जो उसका एक फीचर्स है वो ये है कि ये अपोजिट ब्रेस्ट में स्प्रेड होने के इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू से।